Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology, chapter number 6, that is molecular basis of inheritance. आज के वीडियो में हम जीन के ऊपर चर्चा करेंगे. Apart from gene, we will discuss about one gene, one enzyme hypothesis which was given by Biddle and Tatum. So let's start with the topic. Coming to gene first. The term gene was coined by Johansen to replace the term Mendelian factor. जब मेंडल ने पाइजम सेटिमम के ऊपर काम किया तो उस समय जीन के बारे में किसी को भी कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन मेंडल वाज सो एडवांस्ड, उसने फैक्टर का नाम दिया बाद में, जिसको जोहानसन ने जीन का नाम दिया. जो फैक्टर थे मेंडल के वो बेसिकली जीन ही थे, लेकिन उनको जो जीन का नाम था दैट वाज गिवन बाय जोहानसन इन द ईयर 1909. Johansen defined gene as an elementary unit of inheritance which specifies the expression of a particular trait or a character. तो inheritance का जो elementary unit है जो किसी particular trait या character को express करता है. Morgan defined gene to be a part of chromosome which functions as a unit of recombination. तो Morgan ने इसको unit of recombination बोला. So therefore gene is a unit of inheritance which carries coded information associated with a specific function. तो अल्टीमेटली जीन क्या है? इनहेरिटेंस का यूनिट है जिसमें कोडेड इंफॉर्मेशन होती है which is associated with a specific function. Now coming to the characteristics of gene. It is a component of genetic material which contain coded information for a specific inheritance characteristics. Inheritable characteristics. तो ये क्लियर है. It is able to express its effect by regulating structure or metabolism. Metabolism और structure को regulate करके ये अपने effect को express करता है. It is capable of replication so that its replica or copy can be transmitted to a daughter cell or an offspring. तो इसमें replication की क्षमता होती है. Replication के पश्चात एक कॉपी को ये ट्रांसमिट कर देता है डॉटर सेल को. It can undergo mutation to form an allele with a different expression. Mutation की इसमें क्षमता होती है और mutation के पश्चात जो नया allele बनता है उसका expression जो है वो अलग होता है इससे. It is basic to biological variations that are essential for adaptation and evolution. तो ये बायोलॉजी में बहुत ही important है, evolution में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है. New genes develop due to reshuffling of components of existing genes. Existing genes की रीशफलिंग के कारण नए जीन्स डेवलप करते हैं, नए जीन रिकम्बिनेशन होते हैं. इट ऑक्युपाइज अ स्पेसिफिक लोकस ओवर द क्रोमोसोम. लोकस मींस पोजीशन. जो जीन होते हैं किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जीन की जो पोजीशन होती है वो एक स्पेसिफिक होती है. अगर उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाए तो उसका एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है. देयर इज अ सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स. इट गवर्न्स डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन. डिफरेंशियल एक्सप्रेशन शो करते हैं जिससे डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन में सहायता होती है. नाउ कमिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड एंजाइम्स. अ क्लोज रिलेशन बिटवीन जीन्स एंड एंजाइम्स वाज नोन लॉन्ग बिफोर द मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन वाज फुली वर्कड आउट. जीन एक्सप्रेशन के मैकेनिज्म से पहले जीन और एंजाइम के बीच में जो रिलेशन था उसके ऊपर काफी काम हो चुका था. This relationship was found in the year 1902 by Archibald Garrod, a British physician. He held that the genes operate by producing enzymes. तो उनका ऐसा मानना था कि जो जीन्स होते हैं वो एंजाइम की प्रोडक्शन करके जो अपने ऑपरेशन है उसको करते हैं. He suggested that each of the disease inherited by offspring from the parents is caused by the lack of an enzyme which catalyzes the change of one metabolic substance to another. तो उनका ऐसा मानना था कि जो भी डिजीजेस होती हैं बच्चों में जो पेरेंट्स से लेकर आते हैं वो एंजाइम की कमी के कारण होती है. तो एंजाइम की कमी के कारण जो एक मेटाबॉलिक सब्सटेंस है दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो पाता है. He called such diseases as inborn error of metabolism. Lack of enzyme is due to the absence of the normal form of the gene that controls the synthesis of that enzyme. तो एंजाइम की कमी किसके कारण होती है? एंजाइम की कमी उस एंजाइम को सिंथेसिस करने वाले जो जीन होते हैं उसकी एब्सेंस के कारण होती है. जब उस जीन में म्यूटेशन हो जाती है, जब वो जीन डिलीट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है. दिस वाज प्रूव्ड बाय द वर्क ऑफ बीडल एंड टैटम. तो बीडल एंड टैटम ने इसको प्रूव किया
उन्होंने बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। तो लेट्स डिस्कस द बीडल एंड टैटम्स वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इन द ईयर 1944 जॉर्ज बीडल and Edward Tatum irradiated spores of pink bread mold with X-ray। न्यूरोस्पोरा क्रैसा जो है ये बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स में इसका उपयोग हुआ है। तो क्या किया इन्होंने, बीडल एंड टैटम ने न्यूरोस्पोरा क्रैसा को एक्सरेज के साथ एक्सपोज करवाया, जिससे इनमें म्यूटेशन हो गई। जो जीन्स हैं दे आर हाईली सेंसिटिव टू रेडिएशंस एंड केमिकल्स। तो जैसे ही एक्सरेज का ट्रीटमेंट किया इनके साथ तो इनमें म्यूटेशंस हुई, जिससे इनमें म्यूटेंट की फॉर्मेशन हुई। सो दे obtained a number of mutants called auxotropes। तो उन म्यूटेंट्स को उन्होंने ऑक्सोट्रॉप का नाम दिया। ऑक्सोट्रॉप्स आर न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स विच कैनॉट ग्रो ऑन नॉर्मल और मिनिमल मीडियम। तो ऑक्सोट्रॉप्स क्या हैं, दे आर न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स विच कैनॉट ग्रो ऑन नॉर्मल मीडियम। फॉर देयर सर्वाइवल दे रिक्वायर एन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इन देयर ग्रोइंग मीडियम। तो अपनी सर्वाइवल के लिए उनको किसी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती थी, जो कि बाद में डालना पड़ता था मीडियम में। इन कंट्रास्ट द वाइल्ड टाइप फंगस नोन एज प्रोटोट्रॉप। अब जो ओरिजिनल फंगस थी, ओरिजिनल मींस वाइल्ड टाइप का मतलब ओरिजिनल थी जिसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं थी, उसको प्रोटोट्रॉप कहा गया है। वो नॉर्मल या मिनिमल मीडियम के ऊपर आसानी से ग्रो कर सकती है, क्योंकि जो मिनिमल मीडियम है जिसमें अमोनिया, शुगर और साल्ट होते हैं, इस मिनिमम मीडियम से वो उसको जितने भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है वो उनको सिंथेसाइज कर सकती है, जो प्रोटोट्रॉप। तो बीडल एंड टैटम ने क्या किया, दे सिलेक्टेड 3 ऑक्सोट्रॉप फॉर देयर स्टडी, ऑर्निथिन रिक्वायरिंग, सिट्रुलिन रिक्वायरिंग एंड आर्जिनिन रिक्वायरिंग। आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड है जिसकी सिंथेसिस जो है वो इस रिएक्शन के द्वारा होती है। तो पहले देखते हैं उन्होंने क्या किया। आर्जिनिन रिक्वायरिंग ऑक्सोट्रॉप जो था जिसमें ग्रो किया गया, उस मीडियम में ऑर्निथिन और सिट्रुलिन दोनों पाए गए। सिट्रुलिन रिक्वायरिंग ऑक्सोट्रॉप कंटेन्ड ऑर्निथिन बट नो आर्जिनिन। तो जो सिट्रुलिन रिक्वायरिंग ऑक्सोट्रॉप था उसके मीडियम में ऑर्निथिन था लेकिन आर्जिनिन नहीं था। व्हाइल ऑर्निथिन रिक्वायरिंग ऑक्सोट्रॉप, जो ऑर्निथिन रिक्वायरिंग ऑक्सोट्रॉप था उसके मीडियम में ना सिट्रुलिन था और ना ही आर्जिनिन था। ये क्लियर है। इसके पश्चात जो ऑर्निथिन रिक्वायरिंग ऑक्सोट्रॉप है इसके मीडियम में जब सिट्रुलिन या आर्जिनिन डाला गया तो इसकी ग्रोथ नॉर्मल हुई। उसके पश्चात सिट्रुलिन रिक्वायरिंग ऑक्सोट्रॉप के मीडियम में जब ऑर्निथिन डाला गया, सिट्रुलिन रिक्वायरिंग मीडियम को जब ऑर्निथिन से सप्लीमेंट किया गया तो ये नॉर्मली ग्रो नहीं किया, परंतु जब इसमें आर्जिनिन डाला गया तो ये नॉर्मल ग्रो किया। अब इसी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन की, इसके आधार पर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो आर्जिनिन अमाइनो एसिड है इसकी जो सिंथेसिस है वो इस प्रकार की रिएक्शन से होती है। जो प्रीकर्सर है, ए या बी कोई भी हो सकता है, प्रीकर्सर जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑर्निथिन फर्स्ट, और ये कन्वर्शन जो है वो एंजाइम ए के द्वारा होती है। इसी प्रकार से ऑर्निथिन जो है वो सिट्रुलिन में कन्वर्ट करता है नेक्स्ट स्टेप में, जिसकी कैटालिसिस जो अब एंजाइम बी करता है, और सिट्रुलिन को आर्जिनिन फिर एंजाइम सी कन्वर्ट करता है। अब क्या होता है, जो म्यूटेंट्स हैं, जो ऑर्निथिन रिक्वायरिंग, सिट्रुलिन रिक्वायरिंग, इनमें क्या होता है, ये जो एंजाइम है, जो म्यूटेशन होती है उसके कारण एंजाइम नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि उस एंजाइम को जो सिंथेसिस करने वाला जीन है उसकी म्यूटेशन हो जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस अपने एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर ये प्रपोज किया कि जो एक जीन है वो एक एंजाइम की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। So Beadle and Tatum selected 3 auxotrophs for their study, ornithine requiring, citrulline requiring and arginine requiring। ये अभी हमने पीछे समझ लिया, अभी थोड़ा इसको गो थ्रू होंगे इसमें से। Arginine requiring auxotroph had both ornithine and citrulline। Citrulline requiring auxotroph contained ornithine but no arginine, while ornithine deficient auxotroph did not have citrulline and arginine। Now, ornithine requiring auxotroph would also grow normally if the medium was supplemented with citrulline or arginine। Citrulline requiring auxotroph could not grow on ornithine containing medium but developed normally if the medium was provided with arginine। So from this data, Beadle and Tatum concluded mutations caused defects in the enzymes। One mutation produced only one defective enzyme।
So on this basis, they propose their famous one gene, one enzyme hypothesis, which states that each gene controls the synthesis of a specific enzyme or a particular protein. तो इनकी hypothesis जो थी उनके इसके अनुसार जो प्रत्येक जीन है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। They were awarded Nobel Prize for the same in the year 1958. Their work laid down the foundation of biochemical genetics. तो बायोकेमिकल जेनेटिक्स की उन्होंने फाउंडेशन ले की थी अपने काम के द्वारा। Now there were some defects in their theory. Modification of Beadle and Tatum hypothesis. Now it has been found that all genes do not produce enzyme. तो उसके पश्चात ऐसी बहुत सारी जो ऑब्जर्वेशन थी जो की गई उसमें सबसे पहले है all genes do not produce enzyme. While most of the enzymes are proteins, but all proteins are not enzyme. ज़्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि सारे प्रोटीन जो हैं वो एंजाइम होते हैं। कुछ एंजाइम जो हैं वो दे आर मेड अप ऑफ आरएनए आल्सो। A protein or enzyme may be formed of 2 or more polypeptides, each transcribed by separate gene. तो प्रोटीन या एंजाइम जो है उसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती हैं और प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन को एक सेपरेट जीन जो है वो ट्रांसक्राइब करता है। These cases show that more than one gene may control the synthesis of protein. तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इनके बेसिस के ऊपर हम बोल सकते हैं कि एक प्रोटीन की सिंथेसिस को एक से ज़्यादा जीन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। Hence, it is now held that one gene is responsible for the formation of one polypeptide gene. Hence, one gene, one enzyme hypothesis has been replaced by one gene, one polypeptide chain hypothesis. However, polypeptides are produced by only structural genes. अब इसमें भी और थोड़ा मॉडिफिकेशन हुई है। जो polypeptides होते हैं, they are produced by only structural genes. Some genes synthesizes rRNAs and tRNAs. Other genes take part in controlling the expression of genetic machinery. So therefore, presently the principle of gene expression is one gene, one function. तो ultimately अब जो presently ये principle है इसको one gene, one function के नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। Thank you very much.